Hello everyone. Today we will be discussing about journal characteristics of English. As we all know that today hundreds of millions of people speak English. They learn English all over the world, whether it's their first language or their second language or just one of the foreign languages that they speak and learn at school and so on. So why do this much people they learn English, they speak English? Today we will discuss about that. So let's start. The English language is spoken or read by the largest number of people in the world for historical, political, and economic reasons. So people speak and read English. The largest number of people in the world they speak English for historical and political and economic reasons. Like when Britishers, historical reasons are when Britishers they made colonies all over the world and they took their language that was English. They spread their language all over the world. That's the reason why people all over the world they speak English. But it may also be true that it owes something of its wide appeal to qualities and characteristics inherent in itself. So as we discussed that it English may have some characteristics or qualities that inherent in itself that people all over the world they are using English. What are these characteristic features which outstand in making the English language what it is? So we will discuss those. What are those characteristics? So, the very first and most important characteristic of English is the extraordinary receptive and adaptable heterogeneousness. तो आगे बढ़ने के पहले heterogeneousness का मतलब होता है mixture. If you can see this image, today's English is a mixture of many languages. Is a mixture of many languages. तो अगर आप इस इमेज को समझ जा रहे हैं इसका मतलब हेट्रोजेनियसनेस आपको समझ में आ गया है. हेट्रोजेनियसनेस मतलब द वराइड ईज एंड रीडीनेस ऑफ इंग्लिश with which it has taken to itself मटेरियल फ्रॉम ऑलमोस्ट एवरीवेयर इन द वर्ल्ड. तो इंग्लिश ने पूरे वर्ल्ड से बहुत सारे मटेरियल्स को लिया एंड हैज़ मेड द न्यू एलिमेंट्स ऑफ लैंग्वेज इट्स ओन. और बहुत सारे मटेरियल्स लाइक लैटिन, जर्मनी, ग्रीक, फ्रेंच सबको और अदर सोर्सेज सबको लेके आज जो हमारे पास इंग्लिश है वो टुडे आज की जो मॉडर्न इंग्लिश है वो है. तो हेट्रोजेनियसनेस का मतलब होता है कि रिसीविंग English, which was when the Anglo-Saxons first conquered England in the 5th and 6th centuries, was almost a pure or unmixed language which could make new words for new ideas from its own compounded elements and had hardly any foreign words. So, English that hasn't always been the same as it is today. It has developed over hundreds and hundreds of years. So, before talking about this, I would like to tell that in 55th century BC, when Romans invaded and they bought their language, which was Latin, and English today has about 29% of Latin influence. Then we have these Germanic tribes. These are Anglo and Saxons. So इन 450 एडी और फिफ्थ और सिक्स सेंचुरीज में तीन जर्मैनिक ट्राइब्स आई थी जर्मनी से, विच वॉज एंगल्स, सैक्सन्स एंड जूट्स. एक और थी डेन्स भी, पर वो वो लोग की पॉपुलेशन काफ़ी कम थी. सो वी विल टॉक अबाउट एंगल्स एंड सैक्सन्स क्योंकि ये लोग सबसे ज़्यादा थे. तो इन्होंने फिर इंग्लैंड पे ब्रिटेन पे कॉन्कर किया. उसके बाद इनकी जो लैंग्वेज थी, दे बॉट देयर लैंग्वेज विच उस टाइम जो इंग्लिश थी वो ओल्ड इंग्लिश थी. ठीक है, उस टाइम जो इंग्लिश थी वो ओल्ड इंग्लिश थी और विच वॉज ऑलमोस्ट अ प्योर और अनमिक्स लैंग्वेज. ओल्ड इंग्लिश में एकदम स्टार्टिंग में ओनली इट हैज़ ओनली 550 वर्ड्स, केवल 550 वर्ड्स वर देयर. और उसमें जो शायद ही कोई फॉरेन वर्ड्स उसमें होंगे. इट हैड हार्डली एनी फॉरेन वर्ड्स, उसमें कोई फॉरेन वर्ड्स, एकदम ओल्ड इंग्लिश थी. इसीलिए अगर आज हम लोग ओल्ड इंग्लिश की जो उस टाइम के जो टेक्स्ट होते हैं अगर उसको हम लोग पढ़ने की कोशिश करें तो इट्स रियली डिफ़िकल्ट है ना. इट्स क्वाइट डिफ़िकल्ट टू हैंडल. ओल्ड इंग्लिश इज़ क्वाइट डिफ़िकल्ट टू हैंडल ना. तो उस टाइम जो आई थी, तो अभी क्या है ना, उसके बाद जब जर्मैनिक ट्राइब्स आई तो उसमें इंग्लिश में, आज की इंग्लिश में तो 26% ऑफ जर्मैनिक इन्फ्लुएंस है. उसके बाद वी हैव 29% ऑफ फ्रेंच इन्फ्लुएंस, देन 6% ऑफ ग्रीक इन्फ्लुएंस, देन वी हैव 10% ऑफ अदर लैंग्वेजेस. तो इंग्लिश काफ़ी आज की जो है हैज़ बिकम द मोस्ट मिक्स्ड ऑफ लैंग्वेजेस, having received throughout its history all kinds of foreign elements with ease and assimilated them all to its own character. और अभी क्या है कि आज की जो इंग्लिश है वो एकदम सबसे ज़्यादा मोस्ट मिक्स्ड हो गई है ना, मोस्ट मिक्स्ड, क्योंकि उसमें बहुत सारे लैंग्वेजेस का मिक्सचर हो गई है.
और उसने अपनी पूरी हिस्ट्री थ्रू आउट इट्स हिस्ट्री उसने बहुत सारे फॉरेन एलिमेंट्स को बहुत ही ईज़ के साथ, बहुत ही आसानी से अपने अंदर एब्ज़ॉर्ब किया, मतलब एडैप्ट किया, उसके बाद फिर उसको असिमिलेट किया और फिर उसको ही उन्हीं वर्ड्स को बहुत सारी जो लैंग्वेजेज़ थे, उसके जो मटीरियल्स थे, उसे अपना कैरेक्टर बना लिया। हाँ, ओल्ड इंग्लिश वाज़ क्वाइट डिफ़िकल्ट टू हैंडल। Through its copiousness of vocabulary is outstanding, it is its amazing variety and heterogeneousness, which is even more striking. And this general receptiveness of new elements has contributed to making it a suitable and attractive vehicle in so many parts of the world. So, the copiousness means bulk, anything which is in bulk. तो इंग्लिश की जो vocab है, एक एक वर्ड के कितने सारे सिनोनिम्स है, तो कोपियसनेस मतलब बल्क में बहुत ज़्यादा है ना, कोई चीज़ बल्क में होना। तो इंग्लिश की जो वोकैब है वो अलग से एकदम आउटस्टैंडिंग है, मतलब वो और ज़्यादा स्ट्राइकिंग है और ज़्यादा नोटिसेबल है ना? इन सारी चीज़ों ने, क्योंकि क्यों इतने सारे लैंग्वेजेस से थोड़ा-थोड़ा मटेरियल इंग्लिश ने लिया हुआ है, अपने अंदर अडैप्ट किया हुआ है, तो ऑब्वियस सी बात है जो वोकैब है, जो कोई भी वर्ड है उसकी बहुत सारे मीनिंग्स तो होने ही है ना? तो इंग्लिश का जो वोकैब है वो बहुत ज़्यादा मतलब बल्क में है, बहुत ज़्यादा। तो ये भी एक बहुत स्ट्राइकिंग, बहुत नोटिसिंग चीज़ है। और मतलब अगर एक ही वर्ड के जब कई सारे मीनिंग्स हैं, कई आप अलग-अलग रीजन में हो तो मतलब उसकी कई सारे उसको बोला भी जाता है, इसी वजह से यही सारी उसकी मतलब कैरेक्टरिस्टिक्स है जिसकी वजह से कि ये एक अट्रैक्टिव व्हीकल है इन सो मेनी पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। दैट्स व्हाई वी आर यूजिंग इंग्लिश दिस मच एंड इतना ज़्यादा मतलब वोकैब की वजह से और इतना, क्योंकि उसने अपने अंदर ये सब कहाँ से आया है, हेटेरोजेनियसनेस से ही आया हुआ है।